خواتین و حضرات، میری نظر میں ود پاسٹر فیض سہیل کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویلنٹائن سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے اور فیبرری میں 14 فیب کو ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس سال بھی پاکستان سمیت پاکستان میں بھی کافی جگہ پر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس دن کو منانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار پاسٹر فیض سہیل صاحب موجود ہیں۔ جی تو ناظرین، جس طرح میں ذکر کر رہا تھا ویلنٹائنس ڈے کا، جو کہ ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ فاؤنڈر چیئرمین پرفضل کلیسیا پاسٹر فیض سہیل صاحب موجود ہیں۔ اور آج سر ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ اس دن کو جس طرح ہر سال منایا جاتا ہے، تو آپ ضرور ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ شکریہ دانش، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر ایک بار پھر مجھے موقع ملا ہے کہ میں بھی اس پر کچھ بات کر سکوں، اور میں تقریباً ہر سال ہی اس پر بات کرتا ہوں۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے کو مناتے ہیں، لیکن میں دانش یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں، جیسے ہر ایپیسوڈ میں آپ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن میری بھی خواہش ہے کہ ناظرین جو ہے ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل، جو ہمارے پی ایف کے ینگسٹرز نے شروع کیا ہے، یہ ساری انہی کی کاوشیں ہیں، اور وہ جب کبھی مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چرچ کے لیے، پرفضل کلیسیا کے لیے، ان ینگسٹرز کے لیے اور دوسرے بھی ناظرین کے لیے جو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پر ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کوئی عالم یا اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن ایک خداوند کا چھوٹا سا خادم ہوتے ہوئے جو کلام کی سچائیاں مجھے پتہ ہیں، اور جس تعلیم کا یسوع نے ذکر کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ میں بتا سکوں، تو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ یقیناً اپنے سوالات ہمیں بھیجیں گے، اور ہمارے پی ایف کے ینگسٹرز اور آپ سب لوگ جو ہماری پروڈکشن ٹیم ہے جو اس پروگرام کو تیار کرتی ہے، وہ مجھ تک پہنچائیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا میں ضرور آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور اپنی بھی برکت کے لیے کچھ کہہ سکوں گا۔ اب دانش، جو بات آپ نے کہی کہ آج خصوصاً اس پروگرام میں ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر میں اس کے تاریخی پس منظر کو بتا سکوں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوگا تو میں ضرور جواب دوں گا ریگارڈنگ ویلنٹائنس ڈے، اور اس پر بات ہوگی۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر بہت سے میگزینز میں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، مختلف چینلز پر اس کی بات ہو رہی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اور دانش، دراصل ویلنٹائنس جو تھے وہ ایک پریسٹ تھے، اور وہ خدا کے خادم تھے، کلیسیا کی پاسبانی کرتے تھے، اور ایک رومن امپائر کلوڈیس ان کا نام تھا، اور وہ بہت سی فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ ان کی آرمی جو ہے بہت سے ممالک پر چڑھائی کرتی، جنگ کرتی اور اسے فتح کر لیتی تھی، اور یہ رومن امپائر کلوڈیس جو ہے وہ فتح کے نشے میں اس کی خواہش ہوئی کہ ہم اور زیادہ آرمی میں لوگوں کو بھرتی کریں تاکہ اور زیادہ فتوحات ہم حاصل کر سکیں، اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جتنے ینگسٹر ہیں وہ آرمی میں، فوج میں شریک ہو جائیں، ہم انہیں بھرتی کرتے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو رومن امپائر کلوڈیس کے اس اعلان کے باوجود نوجوانوں نے آرمی میں بھرتی سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے جب انہوں نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پتہ چلا کہ بہت کم نوجوانوں نے آرمی کو جوائن کیا ہے، اور اس طرح سے کلوڈیس نے اس بات کو مناسب سمجھا اور اس نے کہا کہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ ہمارے ملک میں جہاں جہاں ہماری سلطنت ہے، جتنے ینگسٹر ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے، غالباً انہوں نے کچھ سالوں کے لیے کہا کہ ان کی شادیاں نہیں ہوں گی اور یہ آرمی جوائن کریں۔ جب یہ اعلان ہوا، اور یہ چونکہ خداوند تعالیٰ کا قانون تھا کہ جب بیٹا یا بیٹی جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اور اسی طرح مذہب کوئی بھی الہامی کتاب اور مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیاں ہوتی ہیں، بیٹے کی، بیٹی کی، اور یوں خاندان آباد ہوتے ہیں۔ اور یہ پریسٹ جو تھے ویلنٹائن، جب ان تک یہ بات پہنچی تو یہ کلیسیا کے لیے تو تھا ہی مشکل۔ اگر آج بھی خدا نخواستہ ایسے کوئی قوانین آ جائیں کہ جی جوان شادی نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیسیاؤں کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے، خواہ وہ مسلم ہوں خواہ وہ کرسچن ہوں، ان کے لیے بہت مشکل بات ہے۔ سو کلوڈیس نے جب یہ اعلان کیا اور ینگسٹرز جو ہیں اس سے باغی ہوئے اور انہوں نے آرمی میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے، فوج میں بھرتی نہیں ہوئے، تو فادر ویلنٹائنس جو تھے انہوں نے انڈر گراؤنڈ مذہبی رسومات کو ادا کیا، اور یہ مذہبی رسومات میں تھا کہ وہ
माँ बाप की ख्वाहिश पर बेटे और माँ बाप की ख्वाहिश पर बेटी के दरमियान जो रिश्ता तय होता उनका वो निकाह किया करते थे। लेकिन चूंकि ये हुकूमत के ऐलान के खिलाफ काम हो रहा था खामोशी के साथ और उस ऐलान के खिलाफ हो रहा था, तो उस प्रीस्ट को वैलेंटाइन को उस वक्त की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। और जब ग्लोडियस को ये पता चला उन्होंने अरेस्ट किया, और जब वो जेल में थे वैलेंटाइन प्रीस्ट जो थे वो जेल में थे, तो ये तहरीक जोर पकड़ती गई क्योंकि वो नेकी का काम कर रहे थे और यंगस्टर्स को, खानदानों को, कलीसियाओं को ये बात पसंद थी। लेकिन हुकूमत की चूंकि मुखालफ ये बात जा रही थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, और ये तहरीक रोज रोज जोर पकड़ती चली गई और बहुत से नौजवान जो है इस तहरीक में शरीक हुए, और इस तरह से वैलेंटाइंस डे जो है उसका नाम जो है वो शुरू हुआ। वैलेंटाइंस डे की भी अपनी एक तारीख है, और वो इस तरह से है, अजीजो आपको बताता चलूं कि वैलेंटाइंस ने जब जेल में यंगस्टर उन्हें मिलने आया करते थे तो उन्होंने अपनी डायरी पर लिख दिया था कि जिस दिन मैं मरूंगा उसके बाद हर साल ये त्यौहार मनाया जाए। तो वैलेंटाइंस प्रीस्ट जो थे वो 14 फ़रवरी उनकी डेथ हुई, और फिर ये सिलसिला जो है यूं चल निकला और नौजवानों ने इस तहरीक को चलाया और इस मूव में वो आगे बढ़ने लगे। सो ये उस सिलसिले में वैलेंटाइंस डे जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब मैं यहाँ ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि वैलेंटाइंस डे का क्रिश्चियनिटी के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है, और पूरी दुनिया में, खुसूसन यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, और अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं गुज़श्ता चंद सालों से। और ये हमारी शायद बदकिस्मती है कि हम यूरोप को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और मैंने तो लास्ट 2 ईयर्स से कंटिन्यू इस मूव को चलाया और कहा है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी रवायात, हमारी मुल्क की सकाफ़त और अंजील मुक़द्दस की जो सकाफ़त है, जो मोहब्बत पाकीज़गी पर महवर और मरकज़ उसका ये है, हम उन तमाम वैल्यूज़ को, उन तमाम इक़दार को अपनी ज़िंदगी में रख कर तमाम त्यौहारों को, तमाम फेस्टिवल्स को, तमाम डेज़ को जो मनाए जाते हैं मनाते हैं। हम इस बात से नाखुश नहीं हैं कि लोग क्या करते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूके या किसी भी मुल्क में कुछ लोग डेज़ मनाते हैं, ज़रूर उन्हें मनाना चाहिए, हम इससे नाखुश नहीं हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये समझते हैं कि ये दिन जो है ये मोहब्बत की अलामत है और मोहब्बत एक दूसरे का शेयर करनी चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर सकता हूँ। खुदा मोहब्बत है, और प्रीस्ट वैलेंटाइन ने भी उसी मोहब्बत को जाहिर किया है, और वो वही मोहब्बत है जो पाकीज़ा मोहब्बत है। और मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदा बाप ने अपनी मोहब्बत का इजहार यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर अपनी मोहब्बत का इजहार जो वो बनी नौ इंसान के साथ करते हैं, वो यीशु मसीह को, अपने ही बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर उस मोहब्बत का इजहार किया है। और मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु ने फिर इस मोहब्बत को और मज़ीद आगे इस तरह से बढ़ाया कि उन्होंने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान का फिदिया देकर हमें मोल ले लिया, हमें गुनाहों से छुड़ा लिया। वो जो गुनाह से मुबर्रा थे, वो जो गुनाह से नावाकिफ थे, उन्होंने हमारे गुनाह आप उठा लिए और सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया। अब आजकल आप देखते होंगे, और ये हमारे सेट पर भी जो लगाए गए हैं बड़े हार्ट और दिल और ये कलर्स जो हैं, रेड कलर्स और ये फ्लावर जो एक दूसरे को लोग देते हैं, ये अच्छी बात है, मोहब्बत और ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कॉमन बात है मोहब्बत में, अजीज़ों की गुलाब का फूल जो मोहब्बत के तौर पर दिया जाता है, इसका रंग सुर्ख है, और मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु ने उस अगापे मोहब्बत का इजहार कलवरी पर, सलीब पर, इस तरह से उस मोहब्बत का इजहार किया। और याद रखें, अगापे मोहब्बत जो है वो बेरिया है, और मोहब्बत की जो बेस है, मोहब्बत, असल मोहब्बत होती यही है कि जिसके बदले में कुछ हासिल ना किया जाए बल्कि खो दिया जाए। गोया मोहब्बत जो है, प्यार जो है, वो कुर्बानी मांगता है, और मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु ने सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर हमें मोल ले लिया। और वो लहू, जब उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथों में कील ठोंक दिए गए और उन्हें इस तरह से अजियत दी, खोड़े मारे गए और बुरी तरह लहू लहान किया, वो जो लहू बह रहा था उसका रंग भी सुर्ख था। और वो असल में हकीकी मोहब्बत की अलामत
कलवरी पर यीशु के उस बहते हुए लहू से हमें जाहिर हो रही है जो बेरिया है। गुनाह हमारे थे, उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर जान दी और अपने लहू को बहाया और हमें छुड़ा लिया। और मैं ये समझता हूँ ये सुर्ख गुलाब जो है ये मोहब्बत और उस अगापे मोहब्बत का इजहार है और ये पाकीज़ा मोहब्बत का इजहार है। हम समझते हैं मोहब्बत माँ बाप से की जाती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, दोस्त एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, अजीज रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और ये अंजील मुकद्दस के मुताबिक है। मुझे आज वैलेंटाइंस डे के मौका पर ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंजील मुकद्दस में बड़ी वजाहत के साथ मैं वैलेंटाइंस डे को हाईलाइट करते हुए इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा कि ये मसीहों का त्यौहार है। क्रिश्चियनिटी में हम इसको एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं, ऐसी कतई कोई बात नहीं। अगर कोई मना रहा है किस रंग में, अच्छी बात है कि वो किस तरह से मनाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो बात वैलेंटाइंस डे पे कि वो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और मोहब्बत जो है खुदा मोहब्बत है और खुदा उस मोहब्बत को हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात को जानना होगा। अंजील मुकद्दस में अगर हम इसका मुताला करें अंजील मुकद्दस का, इसमें बहुत खूबसूरत बात जो है वो हमें पढ़ने को मिलती है। और मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 22वें बाब की चंद आयात मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती की इंजील उसकी 22वां बाब और उसकी 34वीं आयत से 40वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा और पहला हुक्म ये ही है और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। दानिश, ये खूबसूरत वर्स जो है वर्स 39 और 40 में लिखा है और दूसरा इनकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों में तौरात और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। गोया शरीयत, तौरात और अंबिया के सहाइफ, टाइम टू टाइम जो अंबिया हम तक पहुंचे हैं और इल्हामी किताबें जो हमें हासिल हुई हैं, हमें मिली हैं, जिनके हम पैरोकार हैं, मैं समझता हूं कि उसमें अगर अंजील मुकद्दस का मुताला करें, खुदा जो मोहब्बत है, जो यीशु मसीह में जाहिर हुई मोहब्बत, और वो मोहब्बत को हम कलवरी के मुकाम पर जो यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी उसको हम देखते हैं। और यहाँ यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में भी इस बात पर जोर दे रहे हैं। तौरात और अंबिया की सारी तालीम का निचोड़ जो है वो इस हुक्मों पर ही है और वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और यहाँ मैं सोचता हूँ जब उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिद जानो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, तो आज ये बात जानना इंतहाई जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। मैं आज दो बात पर कहकर खत्म करता हूँ। एक हमें जानना है कि हमारा पड़ोसी कौन है और एक जानना है कि मोहब्बत क्या है। पड़ोसी जो है, इमीडिएट पर्सन जो है वो आपका पड़ोसी है। ऐसा नहीं है कि जिस मोहल्ले में, जिस स्ट्रीट में आप रहते हैं, नेक्स्ट डोर जो है उसको आप पड़ोसी कहते हैं, हाँ वो भी पड़ोसी है। लेकिन अगर आप जहाज में सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप ऑफिस में, किसी भी जगह हैं और कोई शख्स भी जो आपके साथ है, इमीडिएट पर्सन जो है वो आपका पड़ोसी है। और अगर वो दुख की हालत में है तो आपको उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह फरमाते हैं, अपने पड़ोसी को अपनी माने जानो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो। गोया कोई भी शख्स जो इमीडिएट पर्सन है, अगर दुख की हालत में है, उसकी कोई जरूरत है, तो आपको फौरन उस पर अमल करना, उसको उस दुख से निकालना है, उसकी मदद करनी है। और ये मैं ये समझता हूँ कि पड़ोसी का हक अदा करना जो अंजील मुकद्दस के मुताबिक, उसके साथ इसका जिसकी बैकग्राउंड जो है वो फिर वही है कि मोहब्बत है। अगर हमें मोहब्बत है, अंजील मुकद्दस में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत नज़ेबा काम नहीं करती, मोहब्बत झुंझलाती नहीं। और मैं ये समझता हूँ वैलेंटाइंस डे के मौका पर मैं अपने आप से भी और आप सबों से भी ये कहूँगा, वैलेंटाइंस डे के मौका पर इसे मनाते हुए इस बात को याद रखें, जिस मुल्क में आप रहते हैं इसकी रवायात, इसकी सकाफत, आपकी फैमिली वैल्यूज और आप जिस भी मजहब के पैरोकार हैं, उन तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उस अंदाज से एक दूसरे से मोहब्बत करें।
पाकीज़ा मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत करें, बहन भाइयों से मोहब्बत करें, दोस्तों से मोहब्बत करें, अजीज रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करें। ये है वैलेंटाइंस डे, ये है वो मोहब्बत वाला दिन मनाना, और ये वो अंदाज है। आप तोहफे तोहफे देते हैं, ज़रूर अपने पेरेंट्स के लिए तोहफा लेकर जाएं, अपनी वाइफ के लिए लेकर जाएं, अपनी बहन के लिए लेकर जाएं, अपने भाई के लिए लेकर जाएं, अपने दोस्तों के लिए लेकर जाएं, लेकिन उसमें पाकीज़गी का अमल इंतहाई ज़रूरी है। हम जो अंबिया के साहिब और इल्हामी किताबों और अंबिया के मानने वाले हैं, हमारा ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी मसलक से क्यों ना हो, याद रखें इस बात को, ज़रूरी है आप अपने मजहब, अपने अकायद को मद्देनजर रखते हुए, और जिस मुल्क में आप रहते हैं, खुसूसन मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये कहता हूँ, आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे क्या है कि आप पाकीज़ा मोहब्बत को जाहिर करें, यही वैलेंटाइंस डे है। और मैं शुक्रगुजार हूँ दानिश, आज खुसूसन इस मौका पर आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस इशू पर बात करूँ। ज़िंदगी रही तो और बहुत से सवाल जो आप टाइम टू टाइम करते हैं, मुझे बताते रहते हैं, मैं नाज़रीन आपसे इस पर बात करता रहूँगा, और हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, और हम करंट इश्यूज़ पर बात करते हैं, और आज के हालात के हवाले से कि हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद मुझे और आपको सलामती देगा, और फिर हम किसी सवाल को लेकर, किसी जवाब को लेकर यूं एक दूसरे से मुखातिब हो सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत खुशी हुई हमें एक बार फिर आपके साथ आज ये प्रोग्राम करके, और हमें बहुत खुशी है जिस तरह से आपने खूबसूरती से हमें बताया है कि पाकीज़ा मोहब्बत किस तरह से वैलेंटाइंस डे को हमें मनाना चाहिए और मोहब्बत क्या है। तो इसी मोहब्बत में हम जो है प्रोडक्शन टीम की तरफ से आपको ये फूल हम पेश करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आप कबूल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और दानिश आपका भी शुक्रिया, और आप सबको मेरी तरफ से और दानिश की तरफ से वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज फिर पास्टर परवेज़ सुहेल, फाउंडर चेयरमैन प्रो फजल कलीसिया हमारे साथ थे, और बहुत खूबसूरती से हमें बता रहे थे कि किस तौर से हमें वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत खुदा से करनी है, माँ बाप से करनी है, बहन भाई से करनी है, दोस्तों से करनी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका था कि हमें फिर से एक बार सीखने को मिला। और नाज़रीन, इसके साथ मैं चाहूँगा फीडबैक के लिए ज़रूर जो ईमेल एड्रेस है आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप ज़रूर हमें ईमेल कीजिए। साथ ही जो ऑफिशियल पेज है मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल का, उसको आप फेसबुक पे जो है वो आप उसको उस पेज को लाइक कीजिएगा, और उसमें हमारे बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करते रहते हैं, करंट इश्यूज़ पे हम बात करते रहते हैं। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि ये जो सिलसिला प्रोग्राम का चलता रहेगा और आपकी तरफ से हमें फीडबैक आता जाएगा, तो इसी के साथ मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से सबसे पहले तो आपको विश करता हूँ वैलेंटाइंस डे, और उसके साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।